पंजाबी खबरनामा देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਦਲਬਾਈ, ਠੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਬੈਵਲ ਕਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੁਦ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 3 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ SYL ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਥਾਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 73% ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 28% ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲ ਤੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਟੇਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਮੋਗਾ ਟੇਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ? ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਰ ਨੂੰ ਟੇਲ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ, ਮਮਦੋਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਟੇਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਟੇਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਾਰਡਰ ਆ ਕੇ। ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਠੰਡ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 17.16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 19.5 ਤੋਂ 19.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ 2500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਨਾਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਮਿਹਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ रेजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है आईपीएस दे विच। मैं क्लीयर किया जी, तुसी फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया से जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे में लिखिया, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी not to glamorize or politicize this issue। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 2-3 ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ट्रायल कोर्ट दे विच ट्रायल कोर्ट किथे है जी फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी आज भी रिपोर्ट इत्थे पई है इस अदालत तो चोरी करके जी कैमरे दे राही कैम स्कैन करके 2 4 10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी तुसी आप इंसाफ करो एक रिट किया गया 2019 दे विच चोरी करके जी इस अदालत वो भी 2 4 10 सफे जी रिट दे नाल लगा दिता गया और उस रिट दे आधार ते फैसला हो गया जी चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क का संविधान इजाजत नहीं देंदा कि कैम स्कैन दे नाल तुसी चोरी करो चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी मैं अपने जेड़े वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पूछो कि ये रिपोर्ट दे 2 4 10 पन्ने किस तरह आए जी किस तरह आए लेकिन उन्होंने वकीलों ने यह गल नहीं कही क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी है रिपोर्ट खारिज करवानी है आगे देखो इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर रिपोर्ट दा एक एक लाइन जड़ा है ना जी सच्चाई है आगे देखो गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है कर सकता जो दोषी हृदय है दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता आगे होर सुनो I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict. फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे चोरी सीधा 4 5 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो तो वो बंदा किथे जाऊगा जी अपील लेके किथे जाऊगा सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई दिंदी सी मैं इस्तीफा दे दिता सी इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है आई विल कंटिन्यू टू सर्व द सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर हाउएवर नॉट इन द IPS कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं लेकिन समाज की सेवा मैं करता रहांगा मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी उत्थे मैं क्यों गया तुसी सोच सकते हो आज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब मैं बार बार कोशिश की लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी सारी डिटेल रखनी है जी 28 अगस्त 2018 में विधान सभा का एक इजलास होया सी स्पेशल सेशन तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए 28 अगस्त 2018 का दिन सी सबेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी एक रिसोल्यूशन पास होया उस रिसोल्यूशन दे आधार पर साडी SIT बनी सी जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी एक कोई साधारण SIT नहीं सी ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की
एक लाइन भी जेकर गलत हो जावे जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई, यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत ते, यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह जब फोन आया, सुखराज सिंह जी बैठे हुए हैं, कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इसे साल, तो जिस आधार ते पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख, 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग सीएम साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लेके गया, मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है, मेरे वास्ते एमएलए कोई बड़ी चीज नहीं है, आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्होंने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया, ते असी 20 तारीख नू गए अदालत दे विच, 20 मई नू। कई लोगों ने कहा कि अपने सीएम नू चिट्ठी लिखी, अपने सीएम नू चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे सीएम नू नहीं लिखांगे, अपने सीएम नू ही लिखांगे जी, जो बेनती करनी है अपने सीएम नू करो, अपनी सरकार नू ही करो। असी अदालत दे विच गए जी, असी अपनी अर्जी दी भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जदों बहस चली, उधरों बहुत सारे वकील, असी वेखदे सी कि सरकारी तौर ते वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हों का, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया, जिथे जिथे थाम मिलती है तुसी बह जाओ, आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसी फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है, डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थाम मिलती है बह जाओ। 20 मई नू असी 20 मई नू असी अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई, उस दिन फैसला नहीं आया। कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक एलके यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना एलके यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी एसआईटी, ये भी पंजाब पुलिस दी एसआईटी। तो एक एसआईटी का मुखी कह रहा है कि दूसरी एसआईटी मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच किया जा रहा है, तुसी देख लो, ये अदालत दे विच किया जा रहा है। डीजीपी किथे गए जी, कि ये फरियाद डीजीपी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे को कागज है मेरे सारा, कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी, जो बहबल कला वाली सी। असी लड़ाई लड़ते लड़ते जी 4 जुलाई नू फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सीगा। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल में आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज
मैं MLA ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मीरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास की किताबों में। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप दे विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਤਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੌਣ ਜੋੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੋੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਤਕ, तो तुसी उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पवेगा जी, इंसाफ लेना पवेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच असीं लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, तां ही मैं कह रहा लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, आज 14 ਅਕਤੂਬਰ है, 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 14 ਤਾਰੀਖ। 3 घंटे ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी, मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां, इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ। आ देखो सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहोगे कि इंसाफ मिल जाएगा। मांग नहीं करनी है जी, इंसाफ लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनन वास्ते धर्म परिवर्तन करन दी लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। गुरु साहब ने तुहानू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। साडी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन
ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। 14 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। आज मैं भी वकील हाँ जी, 22 तारीख ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਰਹੇ। लेकिन तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने, तुसी ये दसो कि LK यादव दी सीट लेके जाऊगी, नहीं लेके जाऊगी? बतौर वकील असी लेके जाना है, बतौर वकील असी लेके जाना है, ठीक है। ये ना अदालतां दे विच भी छड्डना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी ते लड़ाई लड़न का ही संदेश दिता सी, लड़ाई लड़ो। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये भी पता नहीं है, जो देखो 2 साहिबजादे शहीद हो गए सन, जो उन्होंने ये कहा गया कि 2 छोटे साहिबजादियां नूं सरहिंद दी दीवार दे विच चिन्ह दिता गया। उन्होंने की कहा सी जी, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार, कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी, अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्होंने बच्चों नूं तुसीं देखो, उन्होंने बच्चों नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे, उन्हां दी जुबानी 4th क्लास दे विच सी, हिंदी दे विच कविता है जी, एक लाइन सुनाऊंगा, एक लाइन। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी, 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए, उन्हां दी बदौलत बैठे हुए, नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई इस्तान दा हिस्सा होना सी, मध्य एशिया दा हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी, उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए, ते इस करके ये कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी, एसिड सुखबीर बादल दा चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी, लेकिन ये होण नहीं देना है। ये दिन आधा अधूरा चलान देन, असी सारा चीज देवांगे जी। और इस मुल्क के संविधान के तहत असी कोई भी चीज, तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है, किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असी इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी, छड्डना नहीं है। जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी, जदों भी जावे जी,
मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसी आए हो, हर तारीख ते तुसी जाओ, हर तारीख ते जाओ तुसी, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलना है, इंसाफ नहीं मिलना है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है, यह मनुखता की लड़ाई है जी। उत्थे जाओ, उत्थे बहस करो, तुसी भी बहस कर सकते हो। ते लड़ाई शुरू होने वाली है जी। इन्हां नूं चलान दाखिल करन दो, आधा अधूरा चलान देंगे, असी फिर हर चीज सामने रखना है जी। अदालत लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी, और मैनू पूरा यकीन है कि इस अदालत को भी सानू जीत मिलनी है। कोशिश बहुत होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, लेकिन असी डरना नहीं है जी। असी लालच दे विच नहीं आना है, डरना नहीं, लालच दे विच। ਜਦੋਂ मैं बोलता हाँ, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा। नहीं जी, अपनी सरकार नूं नहीं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पा लिया। नहीं जी, ਅਸੀਂ मुद्दे की गल कर रहे हैं। सरकारां आउंदियां ने, सरकारां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, अपनी सरकार नूं ਅਸੀਂ मजबूती प्रदान करते हैं। आज जो गल तुहाडे सामने में रखी है जी, अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करने वास्ते मानयोग स्पीकर साहब बैठे हैं, डॉक्टर निज्जर साहब, मंत्री साहब बैठे हुए, साडे सरदार कुलवंत सिंह जी MLA साहब बैठे हुए। अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करनी है। अफसोस है कि 13 अप्रैल नूं जदों मैं फेसबुक ते लिखिया सी, साडे भगवंत मान साहब ने पटियाले दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कीता सी। यूट्यूब ते अवेलेबल है जी, फेसबुक ते अवेलेबल है जी, मौजूद है, तुसी देख लो। मैं बार बार उन्होंने यही बेनती करता हूं कि मैं असी तुहाडा वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही ख्यालात वेखना चाहुंदे हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता है। वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी केस। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नूं भी मेरे दर्द दे बारे पता है। गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक MLA दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार यही कहता हूं कि मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने गल, लेकिन सरकारी तौर पर सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपना दर्द मानयोग स्पीकर साहब नूं पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिए है जी, मैनू ओहदा नहीं चाहिए, ओहदे दी लोड़ नहीं है। ओहदा बड़ा छड़ के आया हम, तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है। हुण कोई भी सरकार तुहानू इंसाफ नहीं दे सकती। हुण असी आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नूं भी मजबूत बनाउणा है, इस सरकार नूं मजबूत बनाउणा। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाके तुसी मोर्चा लगा के। तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नूं मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नूं मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसी लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नूं तुसी मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं। बाकी सारे एक सिट मुखी की गल चलती है जी, प्रबोध कुमार। इस तो बाद मैं अपनी वाणी नूं विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनूं इंटैलीजेंस का जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इनू ना लगाओ जी, इनू ज्वाइन ना करन दो। बाद दे विच मैं फेसबुक ते लिखिया जी। खास करके उस दिन जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी।